Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. As you know, we are studying unit number 1, Fundamentals of Chemistry. Before going to today's topic, I want to discuss some questions from the previous lecture. And that questions are, what is an atom? The first question is, what is an atom? Students, do you know what is an atom? The word atom is derived from Greek word atomus, which means indivisible. Now, what is indivisible? Indivisible means the substance which cannot be broken down into more simpler forms. A Greek philosopher, Democritus, for the first time suggested that all matter can be ultimately broken down into tiny particles that cannot be further divided or that are indivisible. These particles were named as atoms. Now the second question is, what is atomic number? Atomic number is the number of protons or the number of electrons present in an atom. Atomic number is represented by capital letter Z. The next and most important question is, what is atomic mass or the mass number? The atomic mass or the mass number is also known as nucleon number. It is represented by capital letter F. Atomic mass is the sum of the number of proton and neutron present in a nucleus of an atom. How we can calculate atomic mass of an atom? We can calculate atomic mass of an atom by adding number of protons and number of neutrons. For example, how we can calculate the number of neutrons in an atom, or how we can calculate the atomic mass of an atom? As you know, the formula for calculation of atomic mass is A is equal to capital Z plus N, means atomic mass is equal to atomic number plus number of neutrons. From this formula, we can calculate atomic mass. For example, we have an element carbon. Carbon having 6 protons, 6 electrons and 6 neutrons. So we have to find atomic number and atomic mass. As we already discussed, atomic number is always equal to the number of proton or number of electron in an atom. So in carbon atom, the atomic number is also 6, as the number of proton is 6 and number of electron is 6. So atomic mass, how will we find atomic mass? Atomic mass is equal to atomic number plus number of neutrons. As the number of neutrons is already given, so we put the value of Z plus N. So atomic number is 6 plus number of neutron is also 6. So atomic mass is 12. Now the next question is, what is it? Why we use AMU? First of all, AMU stands for atomic mass unit. The chemist of 19th century introduced a unit for measure the mass of an atom. That unit was AMU. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि AMU हम किस टाइम पे यूज करते हैं. तो 19th सेंचुरी, अर्लियर 19th सेंचुरी की हम बात करेंगे तो अर्लियर 19th सेंचुरी में
जब हमने कहा कि स्टैंडर्ड या रिलेटिव एटॉमिक मैसेज फाइंड किए जाते थे, तो साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन एटम को एज अ स्टैंडर्ड लिया और हाइड्रोजन एटम के साथ जो है बाकी एटम के मैसेज को कंपेयर करके एटॉमिक मैस फाइंड किया जाता था। मैसेज की अगर हम ग्राम में बात करते हैं या हम केजी में बात करते हैं, तो 1 AMU इक्वल है 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम की इक्वल है, which is so minute value, which is so small value। और इस वैल्यू के साथ प्रैक्टिकली हम ग्राम्स में एटॉमिक मैस फाइंड करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके बाद जो है 1961 में साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने और एक कार्बन 12 को इंट्रोड्यूस कराया फर्स्ट टाइम कि कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम दिया जाएगा और इसके साथ बाकी एटम के एटॉमिक मैसेज को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, ये डिस्कशन सारी की सारी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके। नाउ मूव टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक। लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है। आप देख सकते हैं कि ये सारा आपके पास पीरियोडिक टेबल है जिसमें आपके पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये 118 एलिमेंट्स आपके पास अरेंज हुए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आप देख सकते हैं 1 हाइड्रोजन पे लिखा हुआ है, हीलियम 2, लिथियम 3, अप टू आपके पास 118 एलिमेंट प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। So when we look at the periodic table, the atomic masses of all the elements are given. For example, हम देखते हैं कि किसी भी एटम को हम देखेंगे तो यहाँ पे तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में आप पीरियोडिक टेबल के लिए अपनी बुक भी यूज कर सकते हैं। बुक का पेज नंबर 67। तो 67 पेज पे आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल को कि वहाँ पे हर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर प्रेजेंट है, उसके साथ साथ एटॉमिक मैसेज भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एटॉमिक मैसेज प्रेजेंट है, तो आपने इन एटॉमिक मैसेज को साथ साथ बुक पे देखते जाएं कि हर एलिमेंट का एटॉमिक मैस जो है वो पॉइंट्स की डिजिट में मौजूद होगा, प्रॉपर होल नंबर में मौजूद नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कार्बन की भी हमने एग्जांपल ली, कार्बन 612 मोस्टली आपके पास ऐसे हैं कि जो आपके पास पॉइंट्स की डिजिट में मौजूद है और सम टाइम आपके पास होल नंबर में मौजूद है। जैसे आपके पास कार्बन की हम बात करें तो कार्बन 12, इस तरह हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम आपके पास 22.92 AMU इसका एटॉमिक मैस आता है जो कि पॉइंट्स की फॉर्म में मौजूद है। मोस्टली आपके पास एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इनके एटॉमिक मैसेज पॉइंट्स की फॉर्म में मौजूद है। अब इसके लिए हम रीजन डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा है। ठीक है, सो द फर्स्ट रीजन इज व्हेन वी मेजर atomic masses of an atom with a standard atom, then we get a value in a point numbers। कि जब हम किसी भी एटम के एटॉमिक मैस को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे एटम के साथ तो वो आपके पास पॉइंट्स की फॉर्म में डिजिट्स आते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन एटम को जब हम स्टैंडर्ड लिया था उसके बाद हमने अगर हम उस टाइम पे तो हम हाइड्रोजन को 1 माना करते थे। हाइड्रोजन इज इक्वल टू एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU। ठीक है, लेकिन जब हमने हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक मैस को कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया तो तब हमें पता चला कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक मैस जो है वो 1 AMU नहीं बल्कि एग्जैक्टली 1.0078 AMU है। ठीक है, जो कि हमें कैसे पता चला, जब हमने इसको कंपेयर किया विद स्टैंडर्ड एटम दैट वाज कार्बन 12। सो द नेक्स्ट रीजन इज the existence of different forms of same atom. The existence of different forms of same atom. Do you know which type of different forms? These different forms are known as isotopes. कि हम दूसरी रीजन की बात करेंगे
कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास देखेंगे सब के सब एलिमेंट जो है वो एक ही मर्तबा आए हुए हैं। जैसे हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा है, दोबारा आपके पास 118 एलिमेंट्स में नहीं मौजूद। लेकिन आपके पास कार्बन के साथ हम ये देखते हैं कि कार्बन की 3 मजीद फॉर्म्स भी प्रेजेंट हैं अर्थ क्रस्ट में नेचुरली, विच आर कार्बन 12 itself, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इन फॉर्म्स को हम कहते हैं कि ये कार्बन की आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, यूजुअली कार्बन तो आपके पास एक ही प्रेजेंट है क्योंकि कार्बन 612 है, एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12। लेकिन इसकी फर्दर 3 जो है वो आइसोटोपिक फॉर्म्स मौजूद हैं अर्थ क्रस्ट में नेचुरली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर दी आइसोटोप्स। कि आया हम बात तो कर रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स आपके पास एग्जिस्ट करती हैं जो कि नेचुरली हैं, तो आया आपके पास आइसोटोप्स होते क्या हैं। ठीक है, सो आइसोटोप्स आर, यूजुअली आइसो को हम रेफर करते हैं कि आइसो मीन सेम, टॉप्स रेफर्स टू फॉर्म्स। ठीक है, सो वी डिफाइन आइसोटोप्स एज atom of the same element having same atomic number but different mass number are called isotopes, or atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass are called isotopes. This is the first definition. And the second definition is they have the same number of proton but different number of neutrons. So isotopes आपके पास क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स, जहां पर आपके पास एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है। अब एटॉमिक मैस जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर। ठीक है, atomic mass is totally depend on the number of neutron present in the nucleus of an atom. तो हम कह सकते हैं कि आपके पास आइसोटोप्स किसी एलिमेंट के एटम की वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जहां पर एटॉमिक नंबर तो सेम है बट द mass number is changed. Why the mass number is changed? The mass number is changed because of the number of neutrons present in an atom. हम कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट के सब एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो सकते हैं, बट कभी भी हम ये नहीं कह सकते श्योरली कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन के बिल्कुल सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कार्बन 12 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन की 3 आपके पास फॉर्म्स, आइसोटोपिक फॉर्म्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखें कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। Each 3 forms contain same atomic number, that is atomic number 6. Carbon 12 having atomic number 6, also carbon 13 having atomic number 6 and carbon 14 having atomic number 6. So हम कह सकते हैं कार्बन 12 is 612, 613 and 614। ये 3 एलोटॉपिक फॉर्म है, सॉरी आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो अब कार्बन 12 में हम देखते हैं कि कार्बन 12 में आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 प्रेजेंट है। इन केस ऑफ कार्बन 13 में आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों आइसोटोपिक फॉर्म में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर विल बी सेम बट द डिफरेंट इज एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। ठीक है, सो कार्बन 12 में आपके पास 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। कार्बन 13 में 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, and in case of carbon 14 there are 6 number of proton and 8 number of neutrons. तो आप देख सकते हैं कि तीनों आइसोटोपिक फॉर्म्स में आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, which is 6, 7 and 8.
द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्लोरीन। क्लोरीन आपके पास हैलोजेन यानी ग्रुप 7 का मेंबर है और इसके दो आइसोटॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं नेचर में। द फर्स्ट वन इज chlorine 35 and the second one is chlorine 37. Chlorine 35 is the atomic mass of first isotope and 37 is the atomic mass of second isotope and atomic number 17. Chlorine 35 का atomic number 17 है, chlorine 37 का भी atomic number 37 है। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 दो आइसोटॉपिक फॉर्म है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। द वर्ड एवरेज इज रेफर टू द नंबर when there are some different numbers, then we take average from all these numbers. Why we take average? We take average because we have different numbers, that's why we take average. ठीक है, कि जब आपके पास यूजुअली लाइफ में हम एवरेज कब लेते हैं, क्यों हम एवरेज ले रहे होते हैं, तो आपके पास जब एक ही काइंड के डिफरेंट नंबर्स हों, लाइक हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में बात की कि कार्बन 12, कार्बन 13 कार्बन 14, तो ये तीनों एक ही एटम की तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो इन तीनों डिफरेंट फॉर्म्स को हम कलेक्ट करके कोई भी हम इसकी एवरेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूजुअली बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 3 एक टाइप की ऑर्गेनिजम्स हैं और 3 दूसरे, टोटल आपके पास क्या है, हमने इनका सम अप करके हमने एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो आपके पास 3 एक फॉर्म्स हैं, 3 दूसरी, इन दोनों को हमने सम अप किया और टोटल नंबर पे हम डिवाइड करेंगे। तो टोटल नंबर आपके पास क्या है, टोटल नंबर आपके पास है 2। सो हमने इन दोनों को ऐड किया, 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर विच इज 2। सो इनका जो कैंसिलेशन हो रही है आप उसमें डिवाइड कर दें, 2 1 is 2, 2 3 is 6। सो टोटल आपके पास एवरेज नंबर क्या आ रहा है, 3। ठीक है, नाउ हाउ वी डिफाइन द एवरेज, हाउ वी डिफाइन द एवरेज एटॉमिक मास। Average atomic mass is the weight average of the atomic masses of the naturally occurring isotopes of an element. बात की हमने कि आपके पास एक ही एटम की डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद हैं। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मास कोई एक नंबर लिखा होता है। ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट होगा, जैसे कार्बन की मैंने 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म डिस्कस की है, तो उनमें से पीरियोडिक टेबल में एक कार्बन, उसके साथ एक जो है वो 12 इसका मास लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 12 आपको कैसे पता चला, जबकि आपके पास जो है वो 3 फॉर्म्स मौजूद हैं। ठीक है, तो आपने इनकी एवरेज ली है, तीनों को आपस में कंबाइन किया, फिर टोटल नंबर या टोटल परसेंटेज पे आपने डिवाइड किया, तो आपके पास एवरेज नंबर आ गया जिसको आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंशन किया है। ठीक है, सो एवरेज एटॉमिक मास इज द वेट एवरेज ऑफ द एटॉमिक masses of the naturally occurring isotopes of an element. So next move toward the formula for the average atomic mass. Usually when we find the average of an atomic mass, when we find average for an atom, then we use a formula which is average atomic mass is equal to atomic mass of first isotope multiplied by its percentage abundance divided by 100 plus atomic mass of second isotope multiplied by its percentage abundance divided by 100. This is the formula for finding average for the atoms. जब हम किसी भी एटम की
एवरेज मास काउंट करते हैं तो उसके लिए हमने जो फार्मूला यूज किया है वो फार्मूला आपके पास है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस। अब परसेंटेज अबंडेंस का क्या मतलब है कि आया कितने परसेंट जो है अर्थ क्रस्ट में ये फॉर्म ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट है। टोटल 100 में से फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट है, उसकी एक फॉर एग्जांपल कार्बन की हम बात करते हैं तो कार्बन 12 जो है हमारे पास 93% अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट में। कार्बन 13 की हम बात करें तो विच इज 1.5 समथिंग प्रेजेंट होगा। तो फिर कार्बन 14 की हम बात करें जो कि वेरी रेयर है, जो कि 0.002 समथिंग जो है ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होगा। तो दिस इज परसेंटेज एबंडेंस। ठीक है, सो हम एग्जाम्पल से बात करेंगे कि आपके पास किस तरह से हम जो है किसी भी एलिमेंट की एवरेज फाइंड कर सकते हैं। सो देयर इज एन एग्जाम्पल and statement of this example is naturally occurring chlorine consists of 75% chlorine 35 with the mass of 35.00 AMU and 25% chlorine 37 with a mass of 37.00 AMU. Calculate the average atomic mass of chlorine. स्टेटमेंट को गौर से देखें कि अभी हमने जैसे फार्मूला डिस्कस किया था कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। तो स्टेटमेंट में आप देख लें कि आपके पास सबसे पहले क्लोरीन एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, इसकी सबसे पहले आपके पास क्लोरीन जो है और 75% जो कि आपके पास परसेंटेज अबंडेंस है 75% क्लोरीन 35 प्रेजेंट है। क्लोरीन की हम बात करेंगे दो आइसोटोप्स मौजूद है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक है, सो क्लोरीन 35 की जो परसेंटेज अबंडेंस है वो 75% है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 35.00 AMU है। एंड क्लोरीन 37 की जो परसेंटेज अबंडेंस है वो आपके पास 25% है और ये इसके एटॉमिक मास 37.00 AMU है। सो आपने एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है। लेट्स मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जैसे भी हमने फार्मूला डिस्कस किया था उसी फार्मूला को आपने पुट करना है। तो फार्मूला आपके पास क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 plus atomic mass of second isotope multiply by its percentage abundance divided by 100। यहाँ पे एक चीज आपके पास है, हमने होल डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं, दोनों को एक लाइन में लिख के। यहाँ स्पेस की अवेलेबिलिटी की वजह से 2 बार 100 लिखा गया है तो आप होल डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते हैं। अब हम 100 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? 100 से डिवाइड करने की आपके पास एक रीजन है। वो रीजन ये है कि आपके पास टोटल जो परसेंटेज अबंडेंस है वो आपके पास 100 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 में से कितने परसेंट आपके पास ये फॉर्म एक फॉर्म मौजूद है, कितने परसेंट दूसरी फॉर्म मौजूद है। ठीक है, इस फार्मूला को हम देखते हैं। एक चीज और इसमें क्लियर करती चलूं कि अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट की मोर देन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स आ जाए तब आप क्या करेंगे? तब आप इस फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे प्लस थर्ड आइसोटोप के लिए आपने इसी तरह से फार्मूला लिख देना है। जैसे आपने फर्स्ट आइसोटोप के लिए लिखा है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। फिर आपने सेकंड के लिए लिखा सेकंड आइसोटोप, तो फिर अगर आपके पास थर्ड आइसोटोपिक फॉर्म आती है तो आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप। फोर्थ आती है तो आप 4 लिखेंगे। ठीक है, जितनी आपके पास आइसोटोपिक फॉर्म स्टेटमेंट में गिवन होंगी उसी तरह से आपने फार्मूला को इंक्रीज कर देने हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप भी आपके पास गिवन है, परसेंटेज अबंडेंस भी, सेकंड आइसोटोप की वैल्यू भी और परसेंटेज अबंडेंस भी गिवन है। तो हम चलते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। पुटिंग द वैल्यूज एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर देख लें आप होल डिवाइडेड बाय 100 कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप जो है आपके पास एटॉमिक मास क्या था 35 AMU मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस इज 75% प्लस
सेकेंड आइसोटोप का एटॉमिक मास था 37 AMU इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस वर 25%, होल डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय 100 जो लिखा है वो हम परसेंटेज को सिंपल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, परसेंटेज को हम होल नंबर में सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट आपने 75 को 100 पे डिवाइड कर देना है और 25% को हमने परसेंट को सिंपल डिजिट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, परसेंटेज को खत्म करना है। तो परसेंटेज को खत्म करने के लिए आपने डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, ठीक है। तो 75 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.75। इसी तरह 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.25। सो हम डायरेक्टली यहाँ पर 75 की जगह और 25 की जगह हम 0.75 एंड 0.25 पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 35 AMU इंटू 0.75 प्लस 35 AMU इंटू 0.25। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि जब आपने सिंपल अरिथमेटिक से सॉल्व करना है अब इस न्यूमेरिकल को 35 को आपने 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 26.25 प्लस 37 को आपने 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 9.25। सो आपस में इनको जब प्लस किया तो 35.50 AM आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आ गया है। किसके लिए? क्लोरीन के लिए, जो कि आपके पास पीरियोडिक टेबल पे में आपके पास इस फॉर्म में एक ही एटॉमिक मास लिखा होता है, ठीक है, जो कि आपके पास क्लोरीन के लिए 35.50 AM लिखा होता है, ठीक है। दिस इज एवरेज एटॉमिक मास फॉर क्लोरीन। एक बार फिर देख लें न्यूमेरिकल को ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नेचुरली अकरिंग क्लोरीन consists of 75% क्लोरीन 35 एंड 25% क्लोरीन 37। सो हमने देखा कि सबसे पहले आपके पास फार्मूला है एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स इनटू परसेंटेज अबंडेंस प्लस सेकंड आइसोटोप एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू दैट्स परसेंटेज अबंडेंस होल डिवाइडेड बाय 100। सो आपने वैल्यूज पुट कर दी, परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए आपने 100 से डिवाइड कर दिया, फिर आपने सिंपल अरिथमेटिक से मल्टीप्लाई प्लस करके आपके पास आंसर आया 35.50 AMU विच इज द एवरेज एटॉमिक मास फॉर क्लोरीन। इसी तरह से आपके पास बाकी किसी भी किस्म की कोई भी एग्जांपल्स आ जाएं तो आप इसी फार्मूला से उनको मल्टीप्लाई प्लस करके वैल्यूज पुट करके आप आंसर या एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, आज हमने सारे टॉपिक में क्या कुछ डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं कि हमने इसमें क्या डिस्कस किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड एटॉमिक नंबर, as atomic number is the number of proton or the number of electron present in an atom. So next statement is atomic mass. Atomic mass is the number of proton plus neutron present in an atom. Isotopes are the different forms of atom having same number of protons but the different number of neutrons, or having same atomic number but different mass number, are the atomic mass. Next point is average atomic mass. The average atomic mass is the weighted average of the atomic masses of the naturally occurring isotopes of an element. Okay, next हमने डिस्कस किया फार्मूला फॉर द एवरेज एटॉमिक मास। सो द फार्मूला फॉर द एवरेज एटॉमिक मास इज एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। नंबर ऑफ आइसोटोप्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे आपके पास नंबर ऑफ आइसोटोप्स डिफरेंट हो आप फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आइसोटोप्स के नंबर्स हों तो आपने ऐड फार्मूला को आगे ऐड करते जाना है, लाइक फर्स्ट आइसोटोप, फिर सेकंड आइसोटोप, देन थर्ड आइसोटोप्स एंड देन फोर्थ आइसोटोप्स।
नाउ कम टूवर्ड्स द होम असाइनमेंट। छोटी सी आपके लिए होम असाइनमेंट है, जो कि आपने जिस तरह से आज टॉपिक ले आपने अंडरस्टैंड किया है उसी की बेस पर आपने एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके आपने मुझे पिक्चर भेज देनी है, जिसको चेक करके मैं आपको रिटर्न कर दूंगी और उसी की बेस पर मैं आपकी मार्क्स लगाऊंगी। सो द होम असाइनमेंट इज naturally occurring gallium consists of 60.108% gallium-69 with a mass of 68.9256 AMU and 39.892% gallium-71 with a mass of 70.9247 AMU. Calculate the average atomic mass of gallium. और से देखें कि आपने एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है। गैलियम एक एलिमेंट है जिसका ठीक है, इस गैलियम के दो आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, गैलियम 69 एंड गैलियम 71। गैलियम 69 की परसेंटेज अबंडेंस है 60.108% एंड गैलियम 71 जो है ये 39.892% प्रेजेंट है। ठीक है, और गैलियम 69 के एटॉमिक मास है 68.9256 AMU एंड गैलियम 71 के एटॉमिक मास है 70.9247 AMU। सो आपने इसको उसी तरह से फार्मूला में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करके एटॉमिक मास फाइंड करना है। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है कि जिन बच्चों ने अप्रैल और मई का होमवर्क नहीं किया तो वो काइंडली साथ साथ कर लें, क्योंकि इसी की बेस पर आपका टर्मिनल एग्जाम का रिजल्ट बनेगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने अप्रैल और मई का होमवर्क कर लिया है वो कमेंट बॉक्स में मुझे डन लिखकर भेज दें और उसके बाद आपने जून का होमवर्क स्टार्ट कर लेना अपनी नीट कॉपी पर। ठीक है, जून का होमवर्क जो आपको स्कूल की तरफ से मिला है उसको आपने अपनी नीट कॉपी पर करना है, जिस तरह से आपको स्कूल से गाइडलाइन मिली है कि आपने नीट क्लीन और प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन के साथ आपने होमवर्क करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।